हेलो स्टूडेंट, एमएसके मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको हम लोग ट्यूरिंग मशीन बोलते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को पुश डाउन ऑटोमेटा सिखाया था। और पुश डाउन ऑटोमेटा के डिफरेंट प्रॉब्लम्स मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को वो समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो में समझ सकते हो। लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के भी कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमको एक न्यू मशीन मींस which machine is more powerful as compared to finite automata as well as push down automata। तो ये जो मशीन है ट्यूरिंग मशीन, दिस मशीन इज also called as a universal machine because this machine is a more powerful as compared to previous machines। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमको क्यों ट्यूरिंग मशीन यूज करना है, व्हाई वी यूज ट्यूरिंग मशीन। सो देयर आर मेनी नंबर ऑफ रीजंस ओवर हियर। सो 5 reasons are main important reason for this why we are using the Turing machine। So first point is a memory less। So push down automata have a short memory, means it has only some input tape and one stack memory। Okay, most of the PDA also use 2 stacks, but mostly we use single stack only। So there are, if suppose there is a multiplication problems are there, or we can check the palindrome which having a large number of string, so that time we face the some problem। So therefore it is a PDA is a memory less, means short memory are there। So this is therefore we use the Turing machine। So we clear this point। Now second point is input tape bounded, means over here suppose we do the multiplication, so multiplication requires the large number of tape, means both the side tape size is large। So in PDA there is a input tape bounded problems occurred, therefore we use the Turing machine। And third point is a unidirectional। PDA or we can say post machine, these two machines are unidirectional, means we only read and go forward। We read the, suppose this way, this is the input tape, so we read the symbol which alphabet present over here and go to the next, read and next, means we cannot come to back side, only we go for the forward side। So therefore input tape is a unidirectional। But when we use the Turing machine, this is the bidirectional, we can go for forward side, as means we can go forward as well as reverse side। Okay, so these problems remove, means we can remove this unidirectional problem with the help of Turing machine। And next limitation of PDA, input tape read only, means in PDA we can only read the input, means we cannot write finite control header जो होता है उसके थ्रू हम लोग उस टेप पर कुछ भी राइट नहीं कर सकते, जस्ट वी रीड एंड मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन इन PDA। बट व्हेन वी यूज द ट्यूरिंग मशीन we can read as well as write, go forward as well as backward side। Okay, so therefore we remove this type of problem with the help of Turing machine। And last problem or last limitation of PDA is input alphabet and output alphabet tape are separated। In PDA we use single tape for input tape and separate another tape for output, but while we using the Turing machine, so we remove this type of problem also। So these are the reasons why we are using the Turing machine। So I hope all of you understood why we are using the Turing machine। Now what do you mean by who invented the Turing machine? So first we go to the we define over here। So in 1930 Alan Turing, this is the name of the mathematician, great mathematician। In 1913 Alan Turing is a great mathematician who was invented the Turing machine। Okay, so what he defined, what exactly the Turing machine? So he was defined that a Turing machine, a computable function
it can be computed by Turing machine only. So this is the formal definition. Now we go through the formal definition of Turing machine. So these are the 7 tuples of Turing machine. So over here M is equal to Q alphabet, tau, mapping function, delta, Q0 is your initial state, F is your final state, and over here new symbol B, B small b, and like this one. So this is blank character. We can also represent like this one. Okay, we can use the capital B also for defining the blank character. Okay. So already all of you aware what is these things, what are these 7 tuples. In that first of this one is a Q. Q means a set of finite states. Q is over here set of finite state, and this is the sigma is represent the set of input symbols. So this sigma, just like suppose input symbol is A, B, so it is represented by sigma. So over here sigma is represented input symbol, and this torque symbol, torque are used for इनपुट सिंबल ऑन द टेप. मतलब जो भी सिंबल टेप पर होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टॉर्क. ओके, तो इट इज अ टॉर्क इज अ सबसेट ऑफ इनपुट सिंबल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ मैपिंग फंक्शन. तो मैपिंग फंक्शन जो मैं आपको एंड में बताता हूँ, डेफिनेशन के एंड में. नाउ Q0 सबको पता है, Q0 इज योर initial state, F is your final state, and B is a blank character. This blank character represent when we use the blank character, that means the string is a completed or string end. तो कभी भी हमको जब end मतलब जहां पे string end हो जाती है या string के start से पहले एक कैरेक्टर होता है, उसको हम ब्लैंक कैरेक्टर बोलते हैं. तो आप स्मॉल b का यूज करके ऐसे या फिर इसके थ्रू आप ब्लैंक कैरेक्टर, कैपिटल B के थ्रू ब्लैंक कैरेक्टर बता सकते हो. तो अभी एग्जैक्टली मैपिंग फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने बताया मैपिंग फंक्शन. तो Q it is a set of input states, set of states, and this one is a input symbol, set of input symbol. So when set of input state are mapping with the set of input symbol, so it gives set of input state into, means over here set of input states, set of states, this is the change of alphabet on a input tape. तो जो भी आपका इनपुट टेप होगा उस पे चेंजेस आएंगे, जो भी वो टॉप के थ्रू रिप्रेजेंट होगा. एंड दिस इज द डायरेक्शन टेप, मतलब जो टेप पर कंट्रोल हेडर है, तो कंट्रोल हेडर के मूवमेंट जो पॉइंटर होता है, जैसे अभी ये आपका टेप है और टेप पर यहाँ पे पॉइंटर होता है, हेडर बोलते हैं हम इसमें. तो ये हेडर कौन से साइड पे मूव होगा, तो अगर ये राइट में मूव हो रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वी कैन रिप्रेजेंट ओवर हियर आर. इफ दिस हेडर इज मूव टू द लेफ्ट साइड, so we can represent it move L, means it goes to the left side. अगर कोई भी चेंजेस हेडर में नहीं आ रहे हैं तो हम उसको N यानी न्यूट्रल रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये यहाँ पर ये लास्ट में आपको बताता है कि हेडर का मूवमेंट क्या होगा, मतलब इनपुट टेप पर हेडर किस साइड में मूव होगा. अगर R में लिखता हूं तो राइट साइड में मूव होगा, L लिखता हूं तो वो लेफ्ट साइड में मूव होगा, और N रहता है तो वो कहीं पे मूव नहीं होता है. तो सबको समझ में आ गया इतना. तो दिस इज द डेफिनेशन. ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन. मींस यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जब हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं तो उसका ट्रांजिशन डायग्राम कैसा होता है और ट्रांजिशन टेबल कैसा होता है. तो जब भी आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करोगे तो उसके ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब कोई भी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने के टाइम पर आप लोग ऑलरेडी पता है कि दीज आर द स्टेट्स ऑफ द ट्यूरिंग मशीन. मतलब जहां पे भी हमने देखा है कि ये जो है Q0 इज इनिशियल स्टेट, बिकॉज ओवर हियर दिस इज रिप्रेजेंटेड विद द Q0 एरो, एंड ओवर हियर दिस इज डबल सर्कल, इट इज इंडिकेट द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन. ओके, तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एजेस, जो एजेस होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजेस पे मैंने ट्रिपलेट्स यूज किए. अब वो ट्रिपलेट्स क्या है, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ आपको क्या है कि ट्रिपलेट्स कौन से है वो पता रहना चाहिए. तो ट्रिपलेट किसको कहते हैं, तो फर्स्ट जो होता है आपका ये जो है प्रेजेंट सिंबल, तो ये जो वन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मतलब
चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो 1 ऑब्लिक इन ब्रैकेट 1 कॉमा आर, और इस वे से, ये दोनों वे सेम है, जिससे आप भी आपको बेटर लगता है उससे आप रिप्रेजेंट करोगे। कुछ बुक्स में 1 ऑब्लिक इन ब्रैकेट 1 कॉमा आर से रिप्रेजेंट किया गया है। इन सम बुक्स इट इज यूज्ड लाइक दिस वन 1 कॉमा 1 कॉमा आर। मतलब क्या होता है, फर्स्ट वन आपका ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट सिंबल, तो ये आपकी प्रेजेंट सिंबल है, मतलब प्रेजेंट सिंबल। ओके, तो दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग योर प्रेजेंट सिंबल। उसके बाद में अगर आपने प्रेजेंट सिंबल दिया तो वो सिंबल जो है चेंज होकर क्या होगा, मतलब चेंज ऑफ इनपुट का मतलब क्या होता है कि ये 1 देने के बाद में आपके टेप पे क्या रिफ्लेक्शंस होगा, आपके टेप पर क्या चेंजेस होगा, तो वो चेंजेस यहाँ पर इफेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट होता है, वो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब मैंने 1 दिया तो इनपुट टेप पर क्या चेंजेस हुए, चेंजेस ऑन इनपुट टेप, तो वो यहाँ पे होता है। वैसे ही आप ऐसे भी बता सकते हो, ये आपका इनपुट प्रेजेंट सिंबल है, ये आपको प्रेजेंट सिंबल के बाद में क्या चेंजेस हुए, और ये जो आर रिप्रेजेंट करता है ये मूवमेंट ऑफ हेडर, मतलब टेप हेडर पे, टेप का जो हेडर होता है, मूवमेंट ऑफ टेप हेडर। तो टेप हेडर कौन से साइड में मूव हो रहा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 जो है इनपुट प्रेजेंट सिंबल आपकी है। प्रेजेंट सिंबल जब आपने इनपुट दिया तो टेप पर क्या चेंजेस हुए वो हम 1 से यहाँ पे, यानी कि जब हमने इनपुट दिया तो टेप पे भी इनपुट एज इट इज है। ओके, और आपका हेडर किस साइड में मूव हो रहा है, इट इज अ मूव राइट साइड। अगर ये लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है तो यहाँ पे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये चेंजेस होने के बाद में हेडर जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि इनपुट सिंबल मैंने Q0 को, जब इनपुट Q0 को इनपुट सिंबल दिया तो Q1 पे जाते टाइम उसका हेडर का ये जो सिंबल है वो चेंज होकर 1 हो जाएगा, और जो हमारा टेप हो राइट साइड में मूव हो जाएगा। ऐसे अगर हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर मैंने 0 दिया तो सेल्फ लूप हो रहा है, मतलब Q0 को इनपुट सेल्फ 0 दिया इनपुट तो वो सेल्फ लूप मतलब सेम रहता है। तो यहाँ पे ये इनपुट सिंबल आपकी है, और ये हेडर पे मतलब इनपुट टेप पे चेंजेस क्या होंगे, 0 से 1 हो जाएगा। ओके, और मेरा टेप जो है हेडर की साइड में मूव होगा राइट साइड में। तो ये हो गया मेरा ट्रांजिशन डायग्राम, मतलब एक्चुअल में ट्रांजिशन डायग्राम कैसे वर्क करता है। उसके बाद में जब एक बार आपका जब ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ हो गया, क्या नेक्स्ट आपको ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। क्योंकि अगर आपने ट्रांजिशन टेबल नहीं ड्रॉ किया, इफ सपोज इन आवर SPPU क्वेश्चन POC दिस क्वेश्चन सपोज हैविंग 6 मार्क्स, सो 3 मार्क्स फॉर योर ट्रांजिशन, 3 मार्क्स आपके ट्रांजिशन डायग्राम पर होते हैं और 3 मार्क्स फॉर योर ट्रांजिशन टेबल। और sometime there is a some simulations are given, so 2 marks for your transition table, 2 marks for your transition, sorry, so this 2 marks for transition diagram, 2 marks transition table and 2 marks for simulation, depends on the marks। मतलब क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ इतना बोला है कि आपने डिजाइन करना है, मतलब ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है और कुछ नहीं करना है, तो उस टाइम पे आपको बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना कंपलसरी है। अगर आप सपोज भूल जाते हो कि ट्रांजिशन टेबल नहीं ड्रॉ करते और ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते तो आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है तो आपको सिर्फ 3 मार्क्स दिएंगे क्योंकि आपने टेबल ड्रॉ नहीं किया है। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आपको आए तो आपने डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में टेबल ड्रॉ करना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे सिमुलेशन 100% देगा कि एक स्ट्रिंग आपको देगा और स्ट्रिंग से बोलेगा कि आप इसका सिमुलेशंस करके बताओ, तो उस टाइम पे आपको वो मैप पूरा मतलब सिमुलेशन करके बताना, उसके मार्क्स अलग से रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल जब भी बनाओगे, ऑलरेडी आपने फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्रांजिशन टेबल बनाया, सेम वैसे ही बनाना है आपको। यहाँ पर Q is a number of states and these are the input symbol। तो यहाँ पे इनपुट सिंबल में सिर्फ ये 0 और 1 इनपुट सिंबल आपकी है, सिर्फ एक हमको जो स्पेशल कैरेक्टर है ब्लैंक कैरेक्टर वो यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐसे हमको नंबर ऑफ इनपुट, जो भी नंबर ऑफ इनपुट्स रहेंगे वो +1
ब्लैंक कैरेक्टर का कॉलम ऐड करना है उसके अंदर। उसके बाद में आपको जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो इधर ऐड करना है। अब यहाँ पर देखो, जब मैं Q0 को 0 इनपुट देता हूं, तो Q0 को देखो मैंने 0 इनपुट दिया, तो ये 0 इनपुट देने पे सेल्फ लूप है, तो Q0 स्टेट रहेगी, उसकी नेक्स्ट स्टेट भी Q0 रहेगी। ओके, लेकिन उसके टेप पर जो चेंजेस होंगे वो 0 का 0 ही रहने वाला है, और टेप का हेडर कौन सी साइड में मूव हो रहा है, राइट साइड में मूव हो रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है ऐसे। उसके बाद में मैं जब Q0 को 1 इनपुट दे रहा हूं, तो 1 इनपुट देने के बाद में Q0 कहां पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। यहाँ पे मैंने Q1 से उसको बताया कि वो Q1 पे जा रहा है, और जो टेप पे सिंबल चेंज हो रही है वो 1 का 1 एज इट इज है, और राइट साइड में मूवमेंट है, तो राइट साइड में बता दिया। Q0 से ब्लैंक कैरेक्टर पे हम नहीं जा रहे तो डैश कर दिया हमने। ओके, फिर Q1 नेक्स्ट स्टेट हम आ गए, Q1 हमारी फाइनल स्टेट है। तो जब Q1 पर हम आए तो Q1 को मैंने जब 0 इनपुट दिया तो सेल्फ लूप बन रहा है वो, तो Q1 को 0 इनपुट देने पर सेल्फ लूप है, तो मैंने उसको Q1 पे ही रहने दिया। और जो 0 इनपुट के बाद में जब वो इनपुट सिंबल चेंज होती है वहां पर, तो वो मैंने चेंजेस यहाँ पे टेप पे जो भी चेंजेस हुए, मतलब जब 0 है तो 1 में टेप पे चेंजेस हो जाएंगे और राइट साइड में मूव होगा हमारा हेडर, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये 1 से कोई भी ट्रांजिशन नहीं यहाँ पर, इसलिए डैश कर दिया। ब्लैंक कैरेक्टर भी नहीं है तो डैश कर दिया। तो इस वजह से आप लोगों को जब भी आप डिजाइन करोगे ट्रांजिशन टेबल, सॉरी ट्यूरिंग मशीन जब भी आप डिजाइन करोगे, तो आप सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, उसके बाद में ट्रांजिशन टेबल बनाओ, और उसके बाद में अगर आपको कोई स्ट्रिंग गिवन है तो फिर वो स्ट्रिंग पर का आप सिमुलेशन दिखाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो बेसिक ऑफ ट्यूरिंग मशीन है, मतलब ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते टाइम क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है या मेमोराइज करना है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि हम लोग ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और प्रेस ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि मेरे जब भी न्यू वीडियोस आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले।